आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले इंडिया का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि माउंटेन कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, डेल्टास कैसे बने और इंडिया के बाकी के पार्ट्स कैसे बने। पार्ट्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे हम, जैसे स्टडी द बाउंड्री ऑफ इंडिया, the boundary of India. 11% of the Indian boundary, Indian region, is made up of mountain. Remaining, you can say 43% consists of plains, and of the remaining 46%, I believe, 46% hills and plateaus. Consist of hills and plateaus. Total area of India is 32.87 lakh square kilometers. To be more precise, 32.87 kilometers, of which approximately 7,516 is coastal boundary. Coastal boundary. This India has a coast. This is coast of India. Starting from Gujarat. Here is the coast of India. This coastal boundary including Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Mainland boundary. Mainland boundary consists of 15,200. Of the coast boundary, you see 5,440 approximately is mainland coast. Means this mainland coast. Consider 5,415 approximately somewhere around, or approximately you can write 5,500. And other region of coastal boundary consists of coast of Andaman Nicobar and Lakshadweep. Andaman and Nicobar consists of approximately more than 500 islands, or we can say 572, approximately 572 islands, of which 37 islands are inhabited. Inhabited means 572 आइलैंड में से सिर्फ 37 ऐसे आइलैंड है जहाँ लोग रहते हैं। कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो ज़्यादा पानी आने की वजह से बारिश के समय डूब जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। कुछ आइलैंड इनहैबिटेड हैं, ज़्यादा जंगल हो जाता है, रहने लायक नहीं है। And Lakshadweep is coral island, and Lakshadweep coral island, and Lakshadweep coral island, CORAL. Okay. India is seventh largest state. Seventh largest. State, or we can say seventh largest country in the world. In terms of area, has highest mountain, highest point. You can say highest. Highest point is Kanchenjunga. Kanchenjunga is approximately, you can see 8586, and the lowest point is Kuttanad. Kuttanad. It is approximately minus 2.5 meters. It is also in meter, even meter में है, even meter में है. Highest point. कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कुतनड़ कहाँ है? केरला में।
वैसे हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का K2 है कश्मीर में, K2 है कश्मीर में, बट इस समय वो POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो करंटली हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजुंगा। ठीक है, K2 की हाइट क्या है? अगर K2 माने तो K2 की हाइट क्या है? बट करंटली इसका हाईएस्ट पीक, इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजुंगा 8586 मीटर्स। नेक्स्ट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, व्हाट इज कोल? कोल इज अ लैंड बिटवीन टू पीक, दिस पास, इसको पास भी कहते हैं, कोल भी कहते हैं, ला भी कहते हैं। बिन टू माउंटेन के बीच में एक पास है, उसको हम कोल कहते हैं। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट व्हिच लाइज इन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अगर मैं इंडिया की बात करूं, lies here somewhere, and this is region of POK. Northernmost point is Indira Kool. Northernmost point is Indira Kool. Indira Kool, northernmost point is Indira Kool, and Indira Kool in Siachen Glacier, the name of mountain is Saltoro Mountains. Saltoro, in Saltoro mountain ranges. Saltoro mountain ranges. And southernmost point is Indira Point. कहाँ है? सदर्न निकोबार में, सदर्न निकोबार आइलैंड, सदर्न निकोबार आइलैंड। बट मेनलैंड, मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट इज कन्याकुमारी, कन्याकुमारी और पॉइंट कैलिमियर। मतलब अगर मैं इंडियन पेनिनसुला की बात करूं तो यह है पॉइंट कैलिमियर, लेकिन अगर मैं पोर्ट ब्लेयर की बात करूं तो निकोबार आइलैंड के एंड में यहाँ है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। ये सदर्न मोस्ट है और ये मेनलैंड का सदर्न मोस्ट। शेप ऑफ इंडिया इज क्वाड्रेंगुलर, क्वाड यानी 4, 4 एंगुलर इंडिया का शेप है, 4 एंगल्स हैं इंडिया के पास, जैसे कि हमारे पास इंडिया ऐसे है। तो 4 एंगल, 1 2 3 4 ऐसे, तो क्वाड्रेंगुलर। तो इंडिया इज क्वाड्रेंगुलर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द लेंथ ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 3214 and east to west it is approximately 2933, 2933 approximately. Now we have to understand the position of India. Position means in the earth, अर्थ में इंडिया का पोजीशन क्या है? Where does India lies? एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, इक्वेटर पासेस थ्रू इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है
इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला मतलब यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, तीन साइड पानी है, एक तरफ लैंड, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। Understand the position, we have to understand the grid. What is grid? Grid we have to understand. This is equator. Equator passes through the center of the earth, and these horizontal lines are also called as latitudes. Latitude. We can draw large number of latitudes for the earth. This is not over the line, this is over the earth. अर्थ गोला है तो पूरे अर्थ के ऊपर इस तरह से लैटिट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं, पोल्स पर, ऊपर भी और नीचे भी। लैटिट्यूड्स, सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या होगा? इक्वेटर। इक्वेटर बीच में है, उसके बाद हम अर्थ की तरफ ऊपर जाएंगे तो इसका डिस्टेंस कम होते जाएगा, गोला है। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। इसी बात लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, कभी मिलते नहीं। नेक्स्ट वी हैव लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड जो इक्वेटर से, जो पोल से पास होता है, ये दोनों पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। ऐसे यू कैन सी लॉन्जिट्यूड एक पॉइंट से शुरू होकर एक पॉइंट पे खत्म होता है, मतलब ये क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। इक्वेटर की तरह नहीं, इक्वेटर मिलते नहीं, यानी लैटिट्यूड की तरह नहीं, मिलते नहीं। ये क्या हो रहा है? मिल रहा है। ये यहाँ से जाएगा और यहाँ मिलेगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ मिलेगा। इसको हम कहते हैं, इस तरह के पैटर्न जो अर्थ पे है, तो अर्थ पे हमारे क्या है? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का। इमेजिनरी मतलब दिखता नहीं है, तो इस इमेजिनरी ग्राफ को, इस ग्रिड को हम कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रिड। शेप ऑफ अर्थ को हम कहते हैं जियोइड। जियोइड, हमारे शेप, अर्थ का जो शेप है वो कुछ ऐसा है, जियोइड, अंडे के साथ जियोइड। लेकिन ज्योमेट्रिकल नेम जो शेप का है, अर्थ के शेप का ज्योमेट्रिकल नेम जो है वो है ऑब्लेट एलिप्सॉइड। ऑब्लेट एलिप्सॉइड, ऑब्लेट एलिप्सॉइड। अब थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ये ग्रिड कैसे बनाए होंगे। ठीक है, तो ग्रिड कैसे बनाए होंगे थोड़ा हम बेसिक देखते हैं। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैं नंबर लाइन, कभी हमने देखा होगा नंबर लाइन, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है यहाँ पर, तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब ये कहाँ पर है? 5 के पास, तो एक्स वाला 5, और यहाँ पे कहाँ है? 4 के पास 5। इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया? 5 4। तो ग्रिड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? टू लोकेट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के पास, हमारे पास अर्थ पे क्या है? इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ऊपर है हमारे पास आर्टिक सर्कल, तो 66.5 नॉर्थ पर है, इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और जो 66.5 साउथ पर है उसे हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसके बीच के जो जोन है,
इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिक के बीच में ट्रॉपिकल, इसके ऊपर का जो जोन है इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड, फ्रिजिड या सब पोलर जोन भी कहते हैं। सब पोलर जोन या फ्रिजिड जोन, ठीक है। या हम इसको टेम्परेट भी कहते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। किसी किसी में आपको फ्रिजिड नहीं मिलेगा, इस चीज टेम्परेट ओनली। तो टेम्परेट या सब पोलर जोन दोनों इसमें आते हैं। ऊपर जो पोल होता है, पोल, इसको हम पोलर जोन कहते हैं। ये जो परमानेंट आइस से कवर होता है, तो सिंपली इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। इसको फ्रिजिड जोन नहीं कहते, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, टेम्परेट या सब पोलर, ये ट्रॉपिकल है ना, ये ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट सब पोलर, और ये फ्रिजिड जोन, ये सालों साल बर्फ से ढका। हम बात करें कि ये जोन कैसे बनाए होंगे। बनाने के लिए थोड़ा मेथड हमको समझना पड़ेगा कि ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कैसे बनता है। हम देखते हैं कि ये अगर ये मेरा अर्थ है, अर्थ को हम क्या करते हैं, आधे से कट करते हैं। कट कर दें तो वो अर्थ कैसा दिखेगा, और ये बीच में सेंटर होगा और एक लाइन, ठीक है। तो अर्थ को हमने आधे से कट कर दिया। अब इस आधे के ऊपर हम डी रख देते, डी दिखा है, जो हमारे ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है, ठीक है। तो डी से हमारे पास डी में क्या है, 10, 20, 30, 40, या फिर 90, फिर यहाँ पर 180। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 10 को हम ले जाते, 10 यहाँ मिलता, 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 50 यहाँ पर, उसी तरह पे 90, और यहाँ पे फिर 120, 160, और उसी तरह से यहाँ पे 180। समझ में आ रही? ये हमने अंदर से ड्रॉ किया। एक इमेजिनरी लाइन है और एक कॉन्सेप्ट है कि लैटिट्यूड्स को कैसे ड्रॉ किया। लैटिट्यूड्स को हमने इस प्रोपोजिशन में ड्रॉ किया है कि हर लैटिट्यूड में डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए, एक लैटिट्यूड से लैटिट्यूड से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हर एंगल लेकर ड्रॉ किया हमने, 10 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल। तो जब मैं इसको रब कर दूंगा, वो जो मेरा एंगल 10 डिग्री जहां पर आया था, इस इक्वेटर 10 डिग्री जहां पर आया, यहाँ मेरा 20 आ गया था, यहाँ 30 आ गया, 40 आ गया, 50, 60, 70, 80, 90, तो उस पर ही मैं लाइन ड्रॉ करूँ। उसी तरह ऊपर और उसी तरह नीचे मेरे पास लैटिट्यूड बन जाएंगे, ठीक है। लॉन्जिट्यूड कैसे बनेंगे? लॉन्जिट्यूड को ड्रॉ करने के लिए मुझे पोल्स देखना पड़ेगा, पोल्स। अच्छा, जो इसको मैं देख रहा हूँ, ये कैसे दिखेगा मुझे ऊपर से, ऐसे सेंटर, ऐसे दिखेगा ऊपर से। तो ऊपर का पोजीशन समझो ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री, ठीक है। तो वही 10, 20, 30, 40, 90, 120, इस तरह 180। ये जो 10 की लाइन था, वो ये 0 की लाइन हो गई, ये 10 की लाइन हो गई, ये 20 की लाइन हो गई। इस तरह से ही मैं एक पैटर्न ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्जिट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। रिमेंबर कि लॉन्जिट्यूड कुड बी इनफाइनाइट। हमारे अर्थ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं, पर लैटिट्यूड्स इनफाइनाइट नहीं ड्रॉ किए जा सकते। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। तो इक्वेटर इज लार्जेस्ट लैटिट्यूड, और जो एक लाइन जो सेंटर से पास होती है, जिसको हम 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड,
तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। या इसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। लंदन में एक बिल्डिंग है, इसका नाम है ग्रीनविच, वहां से वो लाइन पास होती है, तो इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रिड पैटर्न डिसाइड होता है। जो मैंने डी रखा है ये इमेजिनरी है, आप अर्थ पे डी नहीं रख सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का, डिस्टेंस ऊपर नीचे ना हो, वो कॉन्सेप्ट वही है। तो हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अर्थ कहाँ लोकेट करता है अपना, इंडिया कहाँ लोकेट करता है अर्थ पे? ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे बने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स कैसे बने। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग कैसे हुई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कहते हैं, और कैप्रिकॉर्न का नाम कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसे बना, हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक यही जान लेना आपको कि सन जो है, अर्थ जो है सन को रोटेट करता है। तो जब वो सन को रोटेट करता है, तो एंगल ऑफ जो रोटेशन है सन को, वो इलिप्टिकल है, ऐसा इलिप्टिकल है। तो एक तरफ क्या होता है, अभी यहाँ पीछे की तरफ है, ये सन की इधर है, ये सन की उधर है, उस तरफ। सो एक तरफ जब अर्थ यहाँ आता है, अर्थ यहाँ आता है, अर्थ यहाँ आता है, अर्थ और एकदम इसके पीछे जब होता है, तो जब यहाँ होता है अर्थ, तब इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर सन जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है। सन का लाइन जो होता है इंसिडेंट का, लाइट ज़्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर। लेकिन जैसे ही सन यहाँ, अर्थ यहाँ आता है, तो ज़्यादा लाइन कहाँ पड़ने लगती है, नॉर्थ की तरफ, ऐसे। इस तरह जब सन यहाँ आता है तो लाइट कहाँ पड़ती है, साउथ की तरफ। तो अर्थ क्या करता है, अपने पोजीशंस को बार बार, अब ये है इक्वेटर, फिर इक्वेटर ऐसे हो जाए, फिर इक्वेटर ऐसे हो जाए, तो यहाँ पर इक्वेटर कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेटर कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर वापस इक्वेटर ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। तो वो टिल्टेड होते रहता है, एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर सीधा होगा। ये प्रोसेस चलते रहता है। इसी प्रोसेस की वजह से हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। यानी क्या, यानी अगर ये हमारा इक्वेटर है, राइट, और जब अर्थ ट्रॉपिक ऑफ, जब अर्थ इस कोने में पहुंचेगा, जैसे मैंने कहा कि ऐसे रोटेट करता है, क्या पोजीशन है, जब इस पोजीशन में पहुंचेगा तो ये टिल्ट हो जाए ऐसे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आपका इक्वेटर ऐसा हो जाएगा। तो पहले इक्वेटर ऐसा था कि जब अर्थ टिल्ट हो गया तो इक्वेटर यहाँ आ गया, बस समझ में आया। जब इक्वेटर यहाँ आ गया तो उनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 23 का। तो 23 का एंगल बना रहा है। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे टिल्ट हो गया, इक्वेटर यहाँ टिल्ट हो गया, फिर सीधा हुआ, फिर टिल्ट हो गया। तो कितने डिग्री पे टिल्ट हो रहा है, 23 पे। ठीक है, तो 23 पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। आप बोलोगे नेमिंग सर कैंसर कैप्रिकॉर्न कैसे बोले, तो मैं बताऊंगा। जब अर्थ यहाँ आता है, जब अर्थ यहाँ पर आए, जब अर्थ यहाँ पर आ जाए, तो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, हमारे सन, हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द क्या है, आसपास में क्या है, इस सन है, दिस इज सन, ये अर्थ। और हमारे अर्थ के आसपास क्या है, हमारे अर्थ के आसपास है कॉन्स्टिलेशंस, स्टार्स के कॉन्स्टिलेशंस। जैसे हमारे पास ओरियन है, हमारे पास जेमिनी है, सैगिटेरियस है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, स्कॉर्पियो है। तो ये क्या है, ये नक्षत्रास है, कॉन्स्टिलेशंस है। अब जब अर्थ अब इस तरह से आए, कभी इस तरीके से आ जाए, तो कौन से कॉन्स्टिलेशन को फेस कर रहा है, कैंसर। यहाँ किसको फेस कर रहा है, कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रहा है। इसका नाम यहाँ पर जब अर्थ आएगा तो जो टिल्टेशन होगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, कैंसर। और जब वहां जाएगा तो टिल्टेशन क्या पड़ जाएगा, कैप्रिकॉर्न। तो नॉर्थ की जब टिल्टेशन होता है तो हमने उसका नाम दे दिया कैंसर,
साउथ की जब टिल्टेशन होता है तो यहाँ होता है, कैप्रिकॉर्न को फेस करता है, तब उसका नाम दे दिया कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, याद रखो अर्थ जो सन होता है, सन के पास होता है जुडाइक विड्थ, जो सन होता है सन के पास होता है जुडाइक विड्थ। ये बहुत ही कोर इन्फॉर्मेशन है, किसी को पता नहीं होती। नॉर्मली जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनको पता होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, आपको एस्ट्रोलॉजी में जरा पढ़ने मिलेगा ये चीज़ें। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर को पता होती है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर उनको पता होती कि जो सन होता है, तो सन का भी भाई लैटिट्यूड होगा। तो अगर ये लैटिट्यूड मान लो 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे, यानी 16 डिग्री का विड्थ थी, समझ में आ रहा है? और इसी 16 डिग्री के विड्थ में आपके सारे कॉन्स्टिलेशन आते हैं, मतलब जो 12 नक्षत्रास हैं उसी कॉन्स्टिलेशन के बीच में आते हैं। मतलब समझे नहीं, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक पीछे, लेकिन सारे इसी 8 डिग्री के ऊपर नीचे की विड्थ में आते हैं। बस समझ में आ रहा है? इसी सब 8 डिग्री के ऊपर नीचे विड्थ में आते हैं, इसलिए इस विड्थ को हम जुडाइक विड्थ कहते हैं। जो सारे नक्षत्र इसी विड्थ में आते हैं। ठीक है, ना हमको जानने की जरूरत नहीं है। जुडाइक विड्थ कहीं पूछ लिया तो 16 डिग्री का होता है, 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ और दी सन, सन पे। ठीक है, अर्थ पे नहीं, अर्थ बहुत छोटा है। चलिए, तो हमने पढ़ा अर्थ का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। अब पढ़ते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है? तो कितने स्टेट से पास होता है भाई? पहला स्टेट कौन सा है? पहला स्टेट है राजस्थान, पहला स्टेट है गुजरात, देन राजस्थान, देन एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। निकलेंगे हम लोग। पहला क्या मेरे पास? गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट से पास होता है अपना टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। 4 याद रखिए। छोटे स्टेट्स को भी याद रखिए। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है इंडिया में? तो 4 छोटे स्टेट्स का भी नोट्स बनाइए, 4 बड़े स्टेट्स का नोट्स बनाइए। ये जैसे हमने किया टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो इंडिया में IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया में हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमको पता है अर्थ जो होता है वो 24 घंटे में पूरा चक्कर घूम जाता है, यानी यहाँ पे अगर मैं हूँ तो 24 घंटे के बाद मैं वापस नहीं आ सकता। 24 घंटा, तो रोटेशन कितने का हो गया? 360 डिग्री एंगल का। कितने घंटे? 24 घंटे में। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। देखिए नहीं, 1 घंटे में 15 डिग्री। चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 12 जा 2 12 2 जा 24, 12 3 जा 2 15, राइट? 1/50, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री पास हो। ठीक, 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई? 60 मिनट। ठीक है, तो 15 1 जा और 4 जा, मतलब 1 डिग्री पास होने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री पास होने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। 1 डिग्री पास होने में 4 मिनट लगेगा। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल निकालूं, ये 2 पाई r, तो मुझे कुछ लेंथ मिल जाएगी। तो हम निकालेंगे बाद में, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे डिटेल में निकालेंगे, जब हम रेडियस पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। फिलहाल हम मानते हैं कि 1 डिग्री पार कर, 1 डिग्री कितना होता है? 69 माइल्स। ठीक है, 1 डिग्री 69 माइल्स होता है।
ठीक है। तो किलोमीटर्स में कितना हो गया कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए मुझे 1 डिग्री 69 माइल्स, तो कितना किलोमीटर होता है 69 माइल्स। ठीक है चलिए, तो हमने क्या कर लिया, हमने अर्थ पे सारी कैलकुलेशन कर लिया कितना डिग्री रोटेट करता है। हम अगर डिफाइन करें कि इंडिया का पोजीशन जरा हम देख लिया, इंडिया कहाँ लाई करता है, ये अर्थ हो गया, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, इंडिया यहाँ यहाँ यानी पहले क्वाड्रेंट में, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, साउथ वेस्ट। ये क्या है, साउथ ईस्ट। इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। कितने स्टेट से, 8 स्टेट से, हमने भी पढ़ा। ठीक है, इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। लेकिन इंडिया से भाई लॉन्जिट्यूड भी तो पास होगा, है कि नहीं, लैटिट्यूड भी पास होगा, जो नीचे वाला लैटिट्यूड और जो ऊपर लैटिट्यूड, है कि नहीं। तो मैं इंडिया को देखूँ जरा डिटेल में बड़ा बनाकर, तो जो इंडिया से लैटिट्यूड पास हो रहे हैं, तो हम लैटिट्यूड देखिए, जो एक यहाँ से पास हो रहा होगा और एक यहाँ से पास हो रहा, ठीक है। और यहाँ अंडमान निकोबार है हमारे पास, यहाँ लक्षद्वीप है, तो एक लैटिट्यूड यहाँ से पास हो रहा होगा और एक यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूँ तो जो यहाँ लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री 45 मिनट ऊपर ज़्यादा समय क्या होता है, नॉर्थ, है कि नहीं। और यहाँ पर लैटिट्यूड क्या होगा, ये लैटिट्यूड कितना है, 37 पॉइंट, लैटिट्यूड कितना 37 डिग्री 6 मिनट। तो लैटिट्यूड का डिफरेंस कितना हो गया है, 6:45 से लेके 37 6 नॉर्थ। उसी तरीके से अगर मैं ईस्ट की बात करूं और वेस्ट की बात करूं, तो ईस्ट में कितना होगा और वेस्ट में कितना होगा। तो यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है, फिर 10 20 30 40, यहाँ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर है 92 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, इंडिया का ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस, ये है नॉर्थ का डिफरेंस। तो इंडिया कहाँ पर ला करता है, नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ ईस्ट वाला काउंट होगा, वेस्ट वाला तो आएगा नहीं। और नॉर्थ में तो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड होगा, साउथ वाला लैटिट्यूड नहीं आएगा। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ईस्टर्न लैटिट्यूड, ये इंडिया का लैटिट्यूडनल जोन है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, हमने किया ईस्ट वेस्ट कितना है 2933, नॉर्थ साउथ कितना था, नॉर्थ साउथ कितना था अभी जरा बताओ, कितना 3214, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया का डिस्टेंस है, इंडिया का पोजीशन है अर्थ पे। ठीक है, चलिए। सो हमने पर देखा ट्रॉपिकल कैंसर कहाँ से पास होता है। हम जानते हैं इंडिया का वाटर जोन जानते हैं, वाटर जोन के बारे में जरा पढ़ लेते हैं हम इंडिया का। अगर मैं जोन्स की बात करूं, ठीक है, यहाँ गुजरात आ जाएगा, कि कोस्टल जोन है इंडिया का। तो जो जोन होता है, जो भी रीजन होता है, मैं इसको मैं डिटेल मैग्नीफाई करूं, ठीक है, मैग्नीफाई करूं तो जोन कैसे होगा, इसको मैग्नीफाई कर दे तो जोन बहुत ही ऐसा होता है ना, कोस्ट ऐसी होगा,
तो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, जो मेन लैंड को कनेक्ट करे, ये मेन लैंड, ये मेन लैंड, ये मेन लैंड, ये सारे जो बाहर निकले इसको मेन लैंड कहते हैं, मेन क्लिफ कहते हैं, ठीक है। मेन लैंड है, मेन क्लिफ, इनके बीच का जो वाटर है इसको हम इनलैंड वाटर कहते हैं, इनलैंड वाटर या इनलैंड सी कहते हैं। अब इस जो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसको हम, इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। तो इसे अगर मैं यहाँ पर इनलैंड वाटर हो गया तो एक लाइन में ड्रॉ करूंगा बेस लाइन को, चलो ये मेरा हो जाएगा बेस लाइन, जो कोस्ट के बहुत पास में होगा। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल क्या होगा मेरे पास, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल वाटर। फिर यहां से फिर 12 नॉटिकल माइल कंटाजियस जोन, कंटाजियस, कंटाजियस जोन, मतलब यहां से 24 नॉटिकल माइल जाएंगे तो ये जो जोन बचेगा इसको कंटाजियस कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल। और इसके बीच में बेस लाइन और मेन लाइन के बीच में जो रहेगा उसको इनलैंड कहेंगे। जब हमने यहाँ ड्रॉ किया है तो ये इसके यहाँ पर आएगा, इसके बीच में यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसको इनलैंड वाटर कहेंगे, ठीक है। ये हमारा बेस लाइन हो गया, दिस इज बेस लाइन, ये टेरिटोरियल वाटर जोन, ये कंटेजियस जोन। इसके बाद का जो रीजन होता है उसको, यानी उसको हम कहते हैं स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी वो कितना होता है, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो यहां से इसके बाद ये पूरा रीजन 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सिर्फ रीजन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, इसमें से अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 176 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली। जो इनके फीचर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये इंडिया को राइट्स देते हैं। तो यहाँ पर टेरिटोरियल वाटर में राइट्स ज़्यादा हमारे पास, इसमें थोड़ा राइट्स कम हो गए, इसमें थोड़ा राइट्स और कम हो गए। उसके बाद जो रीजन को हम कहते हैं हाई सी, हाई सी, हाई सी में हमारा कोई राइट नहीं होगा। हाई सी में इंटरनेशनल लॉ जो होता है, तो इंटरनेशनल लॉस अप्लाई होंगे हाई सी में, ठीक है। वो किसी का जोन नहीं होता। अगर आपको वहाँ कुछ एक्सप्लोर करना है तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर से का जो भी बॉडी होगा उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है।